السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدا شاہ۔ ناظرین، یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم چین کی کامیابیوں کی بات کریں گے، اس حوالے سے دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ بیجنگ میں 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کی دوسری نشست میں قائمہ کمیٹی نے سال 2025 کے دوران اپنے کام کا جائزہ پیش کیا۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤ لے جی نے کہا ہے کہ پیچیدہ داخلی اور خارجی حالات کے باوجود چین نے نمایاں پیش رفت حاصل کی۔ ان کے مطابق 14 5 سالہ منصوبے کی تکمیل سے چین کی اقتصادی اور سائنسی اور تکنیکی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال 6 نئے قوانین منظور اور 14 قوانین میں ترمیم بھی کی گئی۔ قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی نے بیجنگ میں 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کی دوسری کل رکنی نشست میں 2025 کے دوران اپنے کام کا جائزہ پیش کیا۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤ لے جی نے اجلاس میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2025 چین کے لیے غیر معمولی سال رہا۔ ان کے مطابق اندرونی اور بیرون ملک پیچیدہ حالات کے باوجود کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی نے شی جن پنگ کی قیادت میں پورے ملک کو متحد رکھا اور مختلف چیلنجوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 14ویں 5 سالہ منصوبے کی کامیاب تکمیل کے ساتھ چین کی اقتصادی طاقت، سائنسی اور تکنیکی صلاحیت، قومی دفاع اور مجموعی قومی قوت نئی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے سال قائمہ کمیٹی نے آئین کے نفاذ اور اس کی نگرانی کو مزید مضبوط بنایا اور قانون کی حکمرانی کے اتحاد کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ چاؤ لے جی نے مزید کہا کہ آئین کے مطابق مادر وطن کی وحدت کی تکمیل تمام چینی عوام کا مقدس فریضہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 میں قائمہ کمیٹی نے قانون سازی کے شعبے میں بھی پیش رفت کی۔ اس دوران 40 مسودہ قوانین، قانونی تشریحات اور فیصلوں پر غور کیا گیا۔ 6 نئے قوانین منظور کیے گئے اور 14 قوانین میں ترمیم کی گئی۔ چین کی قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی نے 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس میں سال 2026 کے لیے اپنے اہم فرائض اور اہداف کا خاکہ پیش کر دیا ہے۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤ لے جی کا کہنا ہے کہ سال 2026 15ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز کا سال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ معیار کی ترقی کو آگے بڑھاتے ہوئے قومی عوامی کانگریس کے کردار کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ آئین کے جامع نفاذ اور قانون کی حکمرانی کو مزید مؤثر بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی نے 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کی دوسری کل رکنی نشست میں 2026 کے لیے اپنے اہم فرائض اور اہداف کا خاکہ پیش کیا۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤ لے جی نے اجلاس میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2026 15ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز کا سال ہے، اس لیے اعلیٰ معیار کی ترقی کو آگے بڑھاتے ہوئے قومی عوامی کانگریس کے کام کو مضبوط بنانا ضروری ہے تاکہ نئے منصوبے کے مؤثر آغاز میں اپنا کردار ادا کیا جا سکے۔ انہوں نے آئین کے جامع نفاذ کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آئین کو بنیادی رہنما ضابطہ قرار دیتے ہوئے تمام اختیارات اور ذمہ داریاں اسی کے مطابق ادا کی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے آئینی جائزے، ضابطہ جاتی دستاویزات کی جانچ اور قانون کی حکمرانی کے اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے ادارہ جاتی نظام کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ چاؤ لے جی نے چینی خصوصیات کے حامل سوشلسٹ قانونی نظام کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کے مطابق اصلاحات کو گہرا کرنے، ترقی کو فروغ دینے اور استحکام برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف کے تحفظ کو بھی اہمیت دی جائے گی۔ چین کا پیش کردہ گلوبل گورننس انیشیٹو عالمی نظم و نسق کو مضبوط بنانے کے لیے ایک بروقت اقدام ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ اس اقدام کو 150 سے زائد ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ موجودہ عالمی حالات میں کثیر الجہتی نظام شدید دباؤ کا شکار ہے اور عالمی نظم و نسق میں خلا بڑھ رہا ہے۔ وانگ یی کے مطابق اس اقدام کا مقصد اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے پیش کیا گیا گلوبل گورننس انیشیٹو نہایت بروقت اقدام ہے جس کی تائید اور حمایت 150 سے زائد ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے کی ہے۔ وانگ یی نے ان خیالات کا اظہار 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کے موقع پر منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال میں مختلف نوعیت کے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی نظم و نسق میں خلا بڑھ رہا ہے اور کثیر الجہتی نظام شدید دباؤ کا شکار ہے۔
شی جن پنگ کی جانب سے پیش کیا گیا یہ اقدام بروقت تھا اور اسے متعدد ممالک اور تنظیموں کی حمایت حاصل ہوئی، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ اس کے بنیادی نظریات اقوام متحدہ کی اقدار سے ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس اقدام کے بعد چین نے گلوبل گورننس کے دوست ممالک کا گروپ تشکیل دیا، جس کا آغاز نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر اور جنیوا میں اس کے دفتر میں کیا گیا۔ اس گروپ میں خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے ممالک نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ وانگ ای کے مطابق اس اقدام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کو برقرار رکھا جائے اور اسے مزید مضبوط بنایا جائے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ بیجنگ میں 14ویں قومی عوامی کانفرنس کے چوتھے اجلاس کے موقع پر پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ وانگ ای نے ایران اور خطے کی صورتحال پر چین کا موقف بیان کیا۔ کہا کہ چین جنگ بندی اور دشمنی کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ طاقت کا استعمال مسائل کا مؤثر حل نہیں ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے سیاسی حل اور عالمی تعاون ضروری ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں مزید کشیدگی اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے بیجنگ میں 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کے موقع پر منعقدہ پریس کانفرنس میں ایران کی صورتحال سے متعلق چین کا موقف بیان کیا اور ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ چین کا موقف معروضی اور غیر جانبدار ہے اور اس نے متعدد مواقع پر اپنا اصولی موقف واضح کیا ہے، جس کا بنیادی پیغام جنگ بندی اور دشمنی کے خاتمے کا مطالبہ ہے۔ ان کے مطابق مشرق وسطی میں جاری تنازع کسی کے مفاد میں نہیں اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ مسائل کے حل کے لیے طاقت کا استعمال مؤثر راستہ نہیں بنتا، بلکہ اس سے مزید نفرت اور بحران جنم لیتے ہیں۔ وانگ ای نے ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 5 بنیادی اصول بھی پیش کیے، جن میں قومی خود مختاری کا احترام، طاقت کے ناجائز استعمال سے گریز، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، تنازعات کے سیاسی حل کو فروغ دینا اور بڑی طاقتوں کا تعمیری کردار شامل ہیں۔ بیجنگ میں 14ویں قومی عوامی کانفرنس کے چوتھے اجلاس کے دوران ایک گروپ اجلاس میں تائیوان سے تعلق رکھنے والے نمائندگان نے آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف کے درمیان مزید انضمام کو فروغ دینے پر زور دیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ کشیدگی کی بعض کوششوں کے باوجود دونوں اطراف کے درمیان تبادلے اور تعاون میں پیش رفت جاری ہے۔ نمائندگان کے مطابق گزشتہ سال دونوں اطراف کے درمیان افرادی تبادلے کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آبنائی کے دونوں اطراف کے لوگ ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ بیجنگ میں 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کے دوران ایک گروپ اجلاس میں تائیوان سے تعلق رکھنے والے نمائندوں نے آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف کے درمیان مزید انضمام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ تائیوان کی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کی جانب سے کشیدگی پیدا کرنے کی کوششوں کے باوجود آبنائے کے دونوں اطراف کے درمیان تبادلے اور تعاون میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک نمائندے کے مطابق پچھلے سال آبنائے کے دونوں اطراف کے درمیان افرادی تبادلے کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جو تقریباً 6 برسوں میں نئی بلند ترین سطح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ دونوں اطراف کے لوگ ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں اور ان کے درمیان رشتے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نمائندوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تائیوان کے نوجوانوں کی ثقافتی شناخت چائنیز مین لینڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے سرزمین پر آ کر اپنے مستقبل کے مواقع تلاش کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ چین کے صوبہ سچوان کی مابیان ای خود اختیار کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والی قومی عوامی کانگریس کی ایک خاتون رکن ای قومیتی خواتین کو کڑھائی کی تربیت دے کر ان کے معاش کو بہتر بنانے میں مصروف ہے۔ انہوں نے روایتی ای کڑھائی کے فن کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپنی زندگی کا بڑا حصہ وقف کر رکھا ہے۔ کوششوں کے نتیجے میں ہزاروں مقامی خواتین کو تربیت اور روزگار کے مواقع میسر آئے۔ روایتی ہنر کے ذریعے ای خواتین کو غربت سے نکالنا ان کا سب سے بڑا خواب ہے۔ چین کے صوبہ سیچوان کی مابیان ای خود اختیار کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والی قومی عوامی کانگریس کی ایک خاتون رکن پچھلے کئی برسوں سے ای قومیتی خواتین کو کڑھائی کی تربیت دے رہی ہیں تاکہ ان کا معاش بہتر ہو سکے۔ 18 برس کی عمر میں اپنی عمدہ سوئی دھاگے کی مہارت کے باعث شہرت حاصل کرنے والی اس خاتون نے ای کڑھائی کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپنی زندگی کا بڑا حصہ وقف کر دیا ہے۔
ये फ़न कौमी गैर मादी सकाफती वर्से के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। उनका कहना है कि उनका सबसे बड़ा ख्वाब यह है कि रवायती कढ़ाई के ज़रिए ये ख़वातीन को गुर्बत से निकाला जाए। 2015 में उन्होंने 4 दीगर ख़वातीन के साथ मिलकर माबियान में पहला कढ़ाई कोऑपरेटिव कायम किया, जिसके ज़रिए मुकामी ख़वातीन हाथ से तैयार करदा कढ़ाई के फ़न पारे और मलबूसात तैयार करने लगी। अब तक 1850 से ज़ायद कढ़ाई करने वाली ख़वातीन को मुनज़्ज़म किया जा चुका है और 40,000 से ज़्यादा अफराद को तरबियत दी गई है, जबकि घरों में काम करने के इस तरीके से फ़ी गज सालाना आमदनी 18,000 युआन से तजावुज़ कर गई है। चीन के शीज़ोंग खुद इख्तियार इलाके में सेहत के निज़ाम में बेहतरी के बायस अवाम की औसत उम्र में नुमाया इजाफा देखा गया है। बीजिंग में अजीम अवामी हॉल में मुनक्किदा एक ग्रुप इंटरव्यू में चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की एक रुकन ने कहा कि कौमी सतह की मुआवनत से तिब्बी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया गया। बुनियादी सतह पर सेहत के मराकज़ की बेहतरी से आम बीमारियों का इलाज अब मुकामी सतह पर ही मुमकिन हो गया है। इन इक़दामात से किसानों और चरवाहों के सेहत और ज़िंदगी के बुनियादी हुकूक को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिला है। चीन के शीज़ोंग खुद इख्तियार इलाके में कौमी सतह की मुआवनत से सेहत के निज़ाम में बेहतरी के बायस औसत मुतवक्के उम्र में इजाफा देखा गया है। ये बात चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी की एक रुकन ने बीजिंग में अजीम अवामी हाल में मुनक्किदा ग्रुप इंटरव्यू के दौरान कही। उनके मुताबिक बुनियादी सतह पर अवामी सहूलियात और सेहत के शोबे में कौमी सरमायाकारी में इजाफे से इलाज के लिए फासला नुमाया तौर पर कम हो गया है। अब बेशतर आम बीमारियों का इलाज मुकामी कस्बों के सेहत मराकज़ में बर वक्त मुमकिन हो गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले तिब्बी माहिरीन की टीमों ने भी मुकामी तिब्बी खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात के नतीजे में शीज़ोंग खुद इख्तियार इलाके में औसत मुतवक्के उम्र दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है, जिससे किसानों और चरवाहों की ज़िंदगी और सेहत के बुनियादी हकूक़ को मुअस्सर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। चीन की वसी सारिफ मंडी और तेज़ी से तरक्की करता खिदमाती शोबा गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बड़ी कशिश बनकर उभर रहे हैं। हुकूमती वर्क रिपोर्ट की वजाहत के लिए मुनक्किदा ब्रीफिंग में कहा गया कि चीन गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहा है। साल 2025 के अख्ताम तक चीन में इस्तेमाल होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी मुसलसल 16वें साल भी 700 अरब युआन से तजावुज़ कर चुकी है। जिद्दत पर मबनी माहौलियाती निज़ाम और खुलेपन के नए मराकज़ भी आलमी सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चीन की वसी सारिफ मंडी, तेज़ी से फैलता खिदमाती शोबा, जिद्दत पर मबनी माहौलियाती निज़ाम और खुलेपन के नए मराकज़ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए 4 अहम कशिश बनकर उभर रहे हैं। ये बात हुकूमती वर्क रिपोर्ट की वजाहत के लिए मुनक्किदा ब्रीफिंग के दौरान उस वक्त सामने आई जब रिपोर्ट कौमी मुकन्नना को गौर खोज के लिए पेश की गई। रिपोर्ट में गैर मुल्की सरमायाकारी से वाबस्ता इदारों को चीन में दोबारा सरमायाकारी और मुकामी सतह पर अपनी पैदावार बढ़ाने की तरगीब देने का वादा किया गया है। रियासती कौंसिल के तहकीकी दफ्तर के सरबराह और रिपोर्ट की तैयारी करने वाली टीम के ज़िम्मेदार ने बताया कि 2025 के अवाखिर तक चीन में हकीकी तौर पर इस्तेमाल होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी मुसलसल 16वें बरस भी 700 अरब युआन से तजावुज़ कर चुकी है, जो आलमी सतह पर नुमाया मुकाम रखती है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी वाले इदारों की आमदनी और मुनाफे में भी मजमूई इजाफा देखा गया है। उनके मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पहली बड़ी कशिश चीन की वसी सारिफ मंडी है, जहां पिछले साल सारिफ अशिया की मजमूई खुर्दा फरोख्त पहली मरतबा 50 ट्रिलियन युआन से तजावुज़ कर गई। शंघाई में बढ़ती हुई रिटायर्ड आबादी बुजुर्गों के लिए मखसूस समाजी क्लब्स की तरफ राग़िब हो रही है। ये क्लब रिटायर होने वाले अफराद को दोस्तों से मुलाकात, खाने और तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौके फराहम करते हैं। ये मकामात समाजी ताल्लुकात मजबूत करने और सरगर्म रहने में मददगार हैं। क्लब की तेज़ी से बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस अब 2 बरस के अंदर 4 शाखें कायम हो चुकी हैं। शंघाई में हालिया बरसों में रिटायर होने वाले अफराद की बढ़ती हुई तादाद बुजुर्गों के लिए मखसूस समाजी क्लबों का रुख कर रही है, जिससे शहर के सीनियर शहरियों में समाजी सरगर्मियों और तफरीह की बढ़ती हुई तलब जाहिर होती है। क्लब में आने वाले अफराद पूरा दिन दोस्तों के साथ मुलाकात, खाने और मुख्तलिफ सरगर्मियों में गुजार सकते हैं। यहाँ रक्स और बोर्ड गेम जैसी सरगर्मियों का अहतमाम किया जाता है। तकरीबन 100 युआन फी वर्ग के एवज फराहम किए जाने वाले पैकेज में 2 ताज़ा तैयार शुदा खाने और तफरीही सहूलियात तक रसाई शामिल होती है।
कई शुरका के मुताबिक इस तरह के मकामात रिटायर होने वाले अफराद को दोस्तों के साथ मिलने, अपनी सलाहियतें दिखाने और समाजी तौर पर मुतहरिक रहने का मौका फराहम करते हैं। क्लब के इंतजामी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 99% सारिफीन की उम्र 55 से 65 साल के दरमियान है और उनकी बुनियादी ख्वाहिश दोस्तों से दोबारा रब्ता और फ़ाल समाजी ज़िंदगी बरकरार रखना है। बताया गया है कि इस उम्र के बहुत से अफराद अच्छी सेहत रखते हैं और उनकी ख़रीदारी की सलाहियत नौजवान सारिफीन के बराबर है। 2023 में पहले क्लब के क़याम के बाद से ये सिलसिला तेज़ी से फैला और 2 बरस के दौरान इस ब्रांड की 4 शाखें कायम हो चुकी हैं। चीन में कम होती हुई शरह पैदाइश के मसले से निपटने के लिए हुकूमत, निजी शोबे और मुकामी कम्युनिटीज़ मिलकर बच्चों के लिए दोस्ताना मुआशरा बनाने की कोशिशें तेज़ कर रही हैं। ये इक़दाम ख़ानदानों की बेहतर नशोनुमा और मयार ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए किए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी इदारे वालिदैन को डे केयर मराकज़ के ज़रिए काम और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों में तवाज़ुन फराहम कर रहे हैं। हुकाम का कहना है ये इक़दाम सिर्फ आबादी के हुजम तक महदूद नहीं बल्कि माशरती फलाह व बहबूद को भी बेहतर बनाने के लिए। चीन में शरह पैदाइश में कमी के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमती, निजी शोबे और मुकामी कम्युनिटीज़ को शामिल करते हुए बच्चों के लिए दोस्ताना मुआशरा तश्कील देने की कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। इस मकसद के तहत मुतअद्दिद इक़दामात मुतारिफ़ कराए गए हैं, क्योंकि मुल्क में आबादी की बढ़ती हुई उम्र रसीदगी और कम शरह पैदाइश के मसाइल को संजीदगी से देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर ई-कॉमर्स कंपनी JD.com के एक मुलाजिम रोज़ाना अपने 2 साला बेटे को दफ्तर के साथ कायम डे केयर मरकज़ में छोड़कर काम पर जाते हैं, जिससे काम और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों में तवाज़ुन पैदा करने में मदद मिलती है। ताहम बहुत से वालिदैन के लिए सुबह का वक्त अब भी मसरूफ़ियत से भरपूर होता है, क्योंकि वो बच्चों को डे केयर में छोड़कर फ़ौरन काम पर रवाना हो जाते हैं। माजी में दादा दादी या नाना नानी बच्चों की देखभाल में मदद देते थे, मगर बड़े शहरों की जानिब हिजरत के बायस अब यह सहूलत कम होती जा रही है। रिहाइश और सेहत के शोबों में भी ख़ानदान दोस्त पॉलिसियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक इन इक़दामात का मकसद सिर्फ आबादी के हजम को मुनज़्ज़म करना नहीं बल्कि ख़ानदानों के बेहतर नशोनुमा और मियार ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। चीन की कौमी तवानाई इंतजामिया के मुताबिक साल 2025 में तवानाई के इस्तेमाल के आदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होता है कि नई तवानाई के शोबे की तेज़ रफ्तार तरक्की सनती शोबों की जोग्राफियाई तकसीम में नुमायाँ तब्दीलियाँ ला रही है। मगरबी चीन में काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों की तामीर के नतीजे में बरकी आलात और गैर धाती मवाद की सनतें इस खत्ते की जानिब मुंतकिल हो रही हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरकी आलात, गैर धाते और गैर लोहे की धातों के शोबों में मगरबी खत्ते का बिजली इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी दौरान आला टेक्नोलॉजी आलात साजी की सनत ने वस्ती और मगरबी चीन में भी तेज़ी से तरक्की की है। चीन की कौमी तवानाई इंतज़ामिया के मुताबिक 2025 के इलाकाई बिजली के इस्तेमाल के आदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होता है कि तवानाई के वसाइल मुल्क की सनती तरतीब पर नुमाया असर डाल रहे हैं। इदारे की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक नई तवानाई के शोबे की तेज़ रफ्तार तरक्की के बायस सनतों की जोग्राफियाई तकसीम में मज़ीद तब्दीलियाँ आ रही हैं। मगरबी चीन में काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों के तेज़ी से तामीर के नतीजे में बरकी आलात की तैयारी और गैर धाती मवाद की सनतों समेत कई शोबे इस खत्ते की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 में बरकी आलात की तैयारी के शोबे में मगरबी खत्ते का बिजली के इस्तेमाल में हिस्सा 21.9%, गैर धाती सनत में 39% और गैर लोहे की धातों के शोबे में 69.7% रहा। ये शरह 2020 के मुकाबले में बेतरतीब 13.66 और 6.7% पॉइंट ज़्यादा हैं। इसी दौरान आला टेक्नोलॉजी पर मबनी आलात साजी की सनत ने भी वस्ती और मगरबी चीन में तेज़ी से तरक्की की। इस शोबे में बिजली का इस्तेमाल 2020 के मुकाबले में वस्ती खत्ते में 120% और मगरबी खत्ते में 56% बढ़ा। मजमूई इस्तेमाल में इन खत्तों का हिस्सा बेतरतीब 17.9% और 14.3% तक पहुँच गया। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के मुहक्किकीन ने ऑप्टिकल क्लॉक की टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ करते हुए एस्ट्रोनेटियम ऑप्टिकल लेट्स घड़ी तैयार की है। इस घड़ी की दुरुस्तगी और इस्तेहकाम की सतह पर भी बेहतर है। ये घड़ियाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तवानाई की सतहों से वक्त नापने के सबसे दुरुस्त आलात समझी जाती हैं। इस पेशरफ के बाद चीन ऑप्टिकल घड़ियों की तैयारी में दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो गया है।
यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के महक़क़ीन ने ऑप्टिकल क्लॉक की टेक्नोलॉजी में एक अहम पेशरफ्त हासिल करते हुए एस्ट्रोनियम ऑप्टिकल लेटेस्ट घड़ी तैयार की है, जिसकी दुरुस्ती और इस्तेहकाम दोनों 10-19 की सतह से भी बेहतर हैं। इसका मतलब ये है कि ये घड़ी तकरीबन 30 अरब बरस में 1 सेकंड से भी कम गलती करेगी। इस तहकीक के नताइज बैनुल-अक़वामी साइंसी जरीदे मेट्रोलॉजी में शाया किए गए। ऑप्टिकल घड़ियाँ इस वक्त दुनिया में वक्त नापने के सबसे दुरुस्त आलात समझी जाती हैं। ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तवानाई की सतहों के दरमियान मुंतकली के दौरान खारिज होने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी के ज़रिए वक्त की पैमाइश करती हैं और बैनुल-अक़वामी निज़ाम इकायात में सेकंड के नई तारीफ़ के लिए बराह रास्त मुआविन साबित हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के मुताबिक इस पेशरफ्त से चीन ऑप्टिकल घड़ियों की तैयारी में दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो गया है। माहिरीन के मुताबिक ऑप्टिकल घड़ियाँ सैटेलाइट नेविगेशन, टेली कम्युनिकेशन और इंतहाई दुरुस्त पैमाइश के निज़ामों के लिए काबिल एतमाद वक्त फराहम कर सकती हैं। इसके अलावा ये बुनियादी तबियात के नज़रियात की जाँच, कशिश शक्ल की लहरों और तारीक मादे की तहकीक जैसे शोबों में भी नई साइंसी राहें खोल सकती हैं। चीन के सूबा सिचुआन के गोलो गांव ने दही अहया की हिकमत अमली के तहत तरक्की की नई राहें अपनाना शुरू कर दी हैं। गाँव में केबल कार, नलके का पानी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करके मुकामी कौमियत के रहायशियों की ज़िंदगी आसान बनाई जा रही है। माजी में ख़तरनाक रास्तों की वजह से गाँव तकरीबन मुनक़ता था, मगर अब केबल वे और सड़कों के ज़रिए शहर से जुड़ा हुआ है। सयाहत और मुकामी कारोबार जैसे अखरोट, सिचुआन मिर्च और बकरियों की अफजाइश भी फ़रोग़ पा रही है। चीन के सूबे सिचुआन के एक गांव ने जो कभी चट्टानों के बायस दुनिया से कटा हुआ था, देही अहया की हिकमत अमली के तहत तरक्की की नई राह इख्तियार कर ली है। इस मंसूबे के जरिए मुकामी कौमियत के रहायशियों को केबल कार और नलके के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। गोलो गाँव तवील अरसे तक मुनासिब ट्रांसपोर्ट की कमी के बायस करीब के शहर यान से तकरीबन मुनक़ता रहा। गांव की कमेटी के सरबराह के मुताबिक माजी में गांव से नीचे उतरना और वापस चढ़ना इंतहाई ख़तरनाक था और बच्चों को गिरने से बचाने के लिए रस्सियों से बांधना पड़ता था। 2018 में गुर्बत के खात्मे और देही तरक्की के प्रोग्राम के तहत एक केबल वे तामीर किया गया, जिससे गांव के लोगों के लिए दरिया की घाटी अबूर करना आसान हो गया। इस मंसूबे के बाद 3 से 4 घंटे का सफ़र कम होकर सिर्फ 3 से 5 मिनट रह गया। मुकामी अफराद के मुताबिक पिछले बरस पहली मरतबा गाँव में पाइपलाइन के जरिए पानी भी फराहम किया गया। हुकूमती सरमायाकारी से सुरंगों, पुलों और सड़कों की तामीर के बाद गाँव बैरूनी दुनिया से मज़ीद मरबूत हो चुका है। अब यहाँ आने वाले सयाह होम स्टे और कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जबकि अखरोट, सिचुआन मिर्च और बकरियों की अफजाइश जैसे मुकामी कारोबार भी तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। चीन के सूबा फौजियान के शेपू गांव में नाशपाती के फूल खिलने की साथ ही मुकामी देहाती सियाहती खदमात बेहतर बनाकर मशत को फ़रोग़ दे रहे हैं। सफ़ेद फूलों से लदे बागात बहार का दिलकश मंजर पेश करते हैं, जहां सयाह चहलकदमी और तस्वीर लेने का लुत्फ़ उठाते हैं। बारिश के बाद फूल और भी ताज़ा और दिलकश दिखाई देते हैं, जबकि रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात भी मयारी हैं। हर साल फूलों के मौसम में 30,000 से ज़्यादा सयाह गाँव का रुख करते हैं और होम स्टे, दही रेस्टोरेंट्स और स्नैक शॉप्स में कारोबार फ़रोग़ पाता है। चीन के सूबे फौजियान के शीपो गांव में इन दिनों नाशपाती के फूल खिल उठे हैं, जिसके साथ ही मुकामी देहाती ज़्यादा सयाहों के इस्तकबाल के लिए अपनी सियाहती खिदमात बेहतर बना रहे हैं और इस तरह मुकामी मईशत को फ़रोग़ मिल रहा है। सयाहों के आमद के साथ ही गाँव में सफ़ेद फूलों से लदे नाशपाती के दरख्त बहार का दिलकश मंजर पेश करते हैं। खुशगवार मौसम में मुतादिद सयाह फूलों से ढके बागात में चहलकदमी करते, तस्वीर लेते और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते हैं। सयाहों में से कुछ के नज़दीक वो फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, इसलिए इन खूबसूरत नाशपाती के फूलों की तस्वीर लेने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ कहते हैं कि बारिश के बाद ये फूल और भी ज़्यादा ताज़ा और दिलकश दिखाई देते हैं, जबकि गाँव का माहौल, रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात भी बहुत अच्छी हैं। हालिया बरसों में इस गांव में हर साल फूलों के मौसम के दौरान 30,000 से ज़ायद सयाह आते हैं। इस साल मुकामी होम स्टे की बुकिंग में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जबकि देही रेस्तोरां और स्नैक शॉप्स में कारोबार तेज़ हो चुका है। मुकामी अफराद के मुताबिक इख्तिताम में हफ्ता से पहले ही रिहाइश के तमाम कमरे बुक हो जाते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN।
वेलकम बैक नाज़रीन, अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चाइना इन स्प्रिंग टाइम 15वें 5 साला मंसूबे का आगाज हो चुका है। चीनी तर्ज जदीदियत की आलमी अहमियत और मौके के मौजू पर चाइना मीडिया ग्रुप और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ताउन से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे। सेमिनार में चीन की तरक्याती हिकमत अमली और उसके इलाकाई और आलमी असरात खुसूसन पाकिस्तान के लिए उसकी अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में साबिक सफारतकारों, मुहक्किकीन, असातिज़ा, तलबा और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामाबाद में चाइना इन स्प्रिंग टाइम 15वें 5 साला मंसूबे का आगाज, चीनी तर्ज जदीदियत की आलमी अहमियत और मौके के मौजू पर एक अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ। ये सेमिनार चाइना मीडिया ग्रुप और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किया गया, जिसमें चीन की तरक्याती हिकमत अमली और इसके आलमी और इलाकाई असरात खुसूसन पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में साबिक सिफारतकारों, थिंक टैंक्स के नुमाइंदों, मुहक्किकीन, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सेमिनार के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के तर्जुमान मुर्तजा सोलंगी ने कहा कि चीन का 15वां 5 साला मंसूबा एक दूरंदेश और मुस्तकबिल बीन विजन की अक्कासी करता है, जिसमें जिद्दत, माहौल दोस्त तरक्की और मसनूई जहानत के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उनके मुताबिक चीन का तरक्याती मॉडल इस अम्र को उजागर करता है कि टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त को पायदार और माशी नमू के साथ हम आहंग करना इंतहाई अहम है। चीन पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया भर के लिए तरक्की का एक अजूबा रहा है शुरू से। आज जब ये 15वें 5 साला मंसूबे की तरफ जा रहे हैं, तो आज चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं है। अब नई जो आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका मरकज़ है। और चीन अब सिर्फ अपने आप को खुशहाल नहीं कर रहा, अपने 1 अरब 40 करोड़ लोगों को खुशहाल नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर की जो खुशहाली है उसके अंदर अब एक साझेदार बन गया है। चीनी सिफारतखाने के सियासी और इबलागी उमूर के सरबराह वांग शुंगजाई ने अपने खिताब में कहा कि चीन के 5 साला मंसूबों की तैयारी में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की आरा को कलीदी अहमियत दी जाती है, जिसके बायस ये मंसूबा मुल्क की तवीलुल मुद्दती तरक्याती तरजीहात की मौसर अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपने तरक्याती मंसूबों के जरिए न सिर्फ कौमी सतह पर तरक्की को फरोग दे रहा है, बल्कि आलमी मईशत में भी मुस्बत और अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन की पेशरफ्त, खुसूसन 5G नेटवर्क्स की तौसीह का जिक्र करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान में डिजिटल राबितों को मजबूत बनाने के लिए फ़ाल ताउन जारी रखे हुए है। चीन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मसूद खालिद ने कहा कि चीन की नुमायां तरक्की के पस मंज़र में मुसलसल और तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी कार फरमा है, जो मुख्तलिफ 5 साला मंसूबों के जरिए जारी रखी गई है। चीन ने जो अब तक तरक्की की है वो इसी वजह से की है कि उसमें होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ स्टेट, होल ऑफ नेशन इन्वॉल्व है। यानी कि ये प्लान जो था 1953 से शुरू हुआ था, पहला चीन का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और आज हम 15वें प्लान की बात कर रहे हैं। तो इस प्लान में जो ख़ास बात ये है कि ये चीज़ देखी गई है कि एक सिर्फ एक्सपेंशन के ऊपर तवज्जो देने के बजाय इकॉनमी की, उसके ऊपर ये है कि इनोवेशन ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे गौर किया जाए। बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सीनियर तजियाकार हसन दाऊद भट्ट ने कहा कि चीन ने अपने कौमी तरक्याती मंसूबों में मुकर्ररा अहदाफ को मुसलसल हासिल किया है और आलमी चैलेंजेस के बावजूद चीन की मईशत मुस्तहकम अंदाज में तरक्की कर रही है। चाइना के अंदर 2 सेशंस हो रहे हैं जिसमें वो अपना 15 5 ईयर प्लान डिस्कस कर रहे हैं और उससे देख रहे हैं कि किस तरह वो ट्रांजिशन कर सकते हैं 2035 तक, और उसके बाद 2049 की जो चाइनीज़ रीजुविनेशन है उसके अंदर कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक चाइना ने जिस तरह ग्रो किया है फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टू टेक्नोलॉजी हब ऑफ द वर्ल्ड, ये हम सबके सामने है। पाकिस्तान चाइना का
نہ صرف نیبر ہے بلکہ اس کا بہت اچھا دوست ہے. ہماری دوستی سی پیک ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, ہماری دوستی ملٹری اور جو فیئرز ہیں اس کے اندر کلیئرلی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور جب چائنا رائز کرتا ہے تو پاکستان میں نہ صرف گورنمنٹ بلکہ یہاں کے لوگ خوش ہوتے ہیں. یونیورسٹی آف سرگودھا میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر ممتاز آوان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چین کی نئی ترقیاتی حکمت عملی جدت پر مبنی نظام کی تشکیل پر مرکوز ہے. انہوں نے بتایا کہ چین خصوصاً مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں تکنیکی خود انحصاری کو فروغ دے رہا ہے. مین کنسرن جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، گرین انرجی کا یوزیج ہے، اور پاکستان اور ڈیولپنگ کنٹریز یہ دونوں کو اگر میں یہ کہوں کہ اس فیز میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریلائنس کم کر رہا ہے چائنا دوسرے ایکسٹرنل ریسورسز کے اوپر. خاص طور پہ اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹیکنالوجی کی بات کریں، بہت سی جگہوں پہ چائنا نے اپنے نیشنل لیول پہ موبائل کا یوزیج، ٹیکنالوجی کا یوزیج، انٹرنیٹ کا یوزیج، اگین کمپیوٹرز کا اور مشینز کا یوزیج جو ہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ پروڈکٹس پہ شفٹ کرنا شروع کر دی ہے. جو ایکسٹرنل وہ خرید رہے تھے ٹیکنالوجی وہ کم کر دی ہے. دوسری چیز جو کہ پاکستان اور باقی ڈیولپنگ کنٹریز خاص طور پہ اس ریجن کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب چائنا اپنے آپ کو شفٹ کر رہا ہے فرام اے گلوبل مینوفیکچرنگ ٹو گلوبل انوویشن کنٹری. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طلعت شبیر نے کہا کہ چین جدت اور اعلیٰ معیار کی ترقی کے باعث ایک نئے ترقیاتی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور 15واں 5 سالہ منصوبہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے مصنوعی ذہانت، جدید مینوفیکچرنگ اور ڈیجیٹل معیشت پر خصوصی توجہ دیتا ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی جدت، سبز تبدیلی اور طویل المدتی منصوبہ بندی پر مبنی ترقیاتی حکمت عملی نہ صرف چین بلکہ ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی اہم اسباق فراہم کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں. پروگرام چائنا ٹوڈے میں اب چلتے ہیں سیگمنٹ نیو ویژن کی جانب. اگر پوچھا جائے کہ ہر سال مارچ میں کون سی ایسی سرگرمی ہوتی ہے جو پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہے تو یقیناً اس کا جواب ہوگا 2 اجلاس جو چین کے ہر شہری کی زندگی سے وابستہ ہیں اور دنیا بھر کے لیے چین کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ. چین کی اہم ترین سالانہ سیاسی سرگرمیاں ہیں. اگر پوچھا جائے کہ ہر سال مارچ میں کون سی ایسی سرگرمی ہوتی ہے جو پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہے تو یقیناً اس کا جواب چین کے 2 اجلاس. یہ اجلاس نہ صرف ہر چینی شہری کی زندگی سے وابستہ ہے بلکہ دنیا کے لیے چین کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے. سال 2026 کے ان اجلاسوں کی ایک خاص اہمیت ہے کہ یہ سال 15ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز کا سال بھی ہے. یہی منصوبہ آئندہ 5 برسوں میں چین کی ترقیاتی سمت کا تعین کرے گا. آپ شاید سوال کریں کہ کیا آغاز پر تحریر کرتا ایک منصوبہ واقعی کسی بڑے ملک کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ چین کا جواب ہے جی ہاں، اور ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. سال 1953 میں پہلے 5 سالہ منصوبے سے لے کر آج تک چین نے قدم بہ قدم منصوبہ در منصوبہ جدیدیت کے خواب کو حقیقت کا روپ دیا ہے. مثال کے طور پر حال ہی میں مکمل ہونے والے 14ویں 5 سالہ منصوبے کو لیجیے. اس میں واضح کیا گیا تھا کہ نئی توانائی اور نئی توانائی والی گاڑیوں جیسی صنعتوں کو فروغ دیا جائے گا. 5 سال میں چین میں نئی توانائی والی گاڑیوں کی تعداد 50 لاکھ سے بڑھ کر 4,39,70,000 تک جا پہنچی، یعنی تقریباً 8 گنا اضافہ. یہ گاڑیاں نہ صرف چین کی سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں بلکہ برآمد ہو کر دنیا کے کونے کونے تک جا رہی ہیں. شمسی پینلز اور لیثیم بیٹری کے ساتھ مل کر یہ چین کی برآمد کی 3 نئی بڑی اشیاء بن چکی ہے. 5 برسوں میں ان کی برآمد میں 7 گنا سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. کیا آپ نے بھی اپنے ارد گرد کبھی چینی ساختہ شمسی پینلز یا نئی توانائی والی گاڑیاں دیکھی ہیں؟ ایک اور اصطلاح جس کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہو، کی ویزا. تو کی ویزا کیا ہے؟ دراصل یہ ویزا خاص طور پر دنیا بھر کے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین کو چین میں
काम और तबादले के लिए लाइव करने के मकसद से मुतारिफ कराया गया है। ये कोई आर्जी इकदाम नहीं बल्कि 14वीं बांग्श सारा मंसूबे में शामिल ज़्यादा खुरी और फाल अफरादी कुव्वत की पारसी का अमली नफाज है। अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ पारसी के ऐलान के बाद ही खे वीज़ा से मुतारिक मुशावरत की तादाद 1 लाख से तजावीज़ कर गई और बैरून मुल्क में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस और रियाजी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की। यही चीन की मनसूबाबंदी की इफरादियत है। ये महज नारा नहीं बल्कि आमली नफाज है जो सनदों, अफरादी कुव्वत और हदा की आलमी मंदियों पर असर अंदाज होते हैं। आपने देखा होगा कि 10 साल पहले शमसी पैनल्स इतने महंगे होते थे कि लोग खरीदने से कितराते थे। आज इनकी कीमतों में 80% से ज़्यादा कमी आ चुकी है। ये महज इत्तेफाकी नहीं बल्कि चीन की शमसी सन्नत की बड़े पैमाने पर पैदावार और तकनीकी तरक्की का नतीजा है। कपड़े तजदीद तवानाई अब ऐश की चीज़ नहीं रही बल्कि आम घरों की रोज़मर्रा बिजली की ज़रूरियात बन चुकी है। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में तो सोलर पैनल्स दुल्हन के जहेज का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो आप देखें, इन सब के पीछे चीन की दूर अंदेश मनसूबाबंदी कारफरमा है। दो सवाल ये है कि आइंदा बांग्श साल यानी 15वीं बांग्श सारा मंसूबे में क्या नया आने वाला है? इसका जवाब चंद करीबी अल्फाज में पोशीदा हो सकता है। आला मियार के खुले बंदी बारसी का फलोग, आला मियार के हामिल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुश्तरका तामीर और सेंसो तकनीकी एहतिलाक को नए मियार की पैदावारी कुव्वतों के साथ हम आहंग करना। आप महसूस करेंगे कि अगरचे आलमी सतह पर तिजारती तहफ़्फ़ुज़ पसंदी में इजाफा हो रहा है, चीन इसके बरअक्स मुसलसल खुले बन को इज़्ज़त दे रहा है और दुनिया को मज़ीद तावन के मौक़े फराहम कर रहा है। साल 2000 के आगाज़ ही में एशिया, यूरोप और शुमारी अमेरिका के रहनुमाओं के चीन के मुसलसल दौरों ने वाज़ा बयान दिया कि दुनिया चीन के साथ तरक्की के इस सफ़र में शामिल होना चाहती है। ताकि सतह पर रिहायशी खपत की शरह में नुमायां इजाफे को भी इस मंसूबे में शामिल किया गया है। सादा अल्फाज में इसका मतलब है कि लोगों को एतमाद के साथ खरीद करने की तरगीब दी जा रही है। गुज़िश्ता साल में चीन ने खुदरा फरोख्त का हुजूम 50 ट्रिलियन युआन से तजावीज़ कर दिया, जो एक वसी और मुतहरिक मंदी की अक्कासी करता है और आम लोगों के लिए शिरकत और इस्तीफादे का मौका फराहम करता है। 15वां बांग्श सारा मंसूबा आइंदा 5 बरसों का नक्शा तैयार कर चुका है। अब सिमत मुलिन हो चुकी है। क्या आप चीन की तरक्की के इस सफर में शामिल होने के लिए तैयार हैं? अगर बीजिंग को किसी चाय की दुकान से तशबीह दी जाए जो 15वें 5 साला मंसूबे में शानदार वरीयत में अपग्रेड होने के मुतरादिफ है, बीजिंग की मशहद 5 ट्रिलियन युआन की हद उबूर कर चुकी है। अब ओलंपिक शहर, बीजिंग का आलमी विरसा और हवा इस कदर साफ कि आसमान सितारों से अगली जानिब नजर आने लगा। 15वां 5 साला मंसूबा अपने तयशुदा हदफ की रोशनी में आगे बढ़ते हुए इंतहाई शानदार है। बीजिंग की कामयाबी का राज जानने के लिए देखिए ये वीडियो। दोस्तों, अगर बीजिंग को किसी चाय की दुकान से तशबीह दी जाए तो 14वीं बांग्श सारा मंसूबे के ये 5 साल यकीनन सादा वर्जन से शानदार वर्जन में अपग्रेड होने के मुतरादिफ है और बीजिंग की मईशत 5 ट्रिलियन युआन की हद उबूर कर गई। तब ओलंपिक शहर, बीजिंग वस्ती महवर का आलमी विरसा बनना और हवा इस कदर साफ के सितारों फरले आसमान तक नजर आने लगा। 15वां 5 साला मंसूबा अपने तयशुदा हदफ की रोशनी में इससे भी आगे बढ़ते हुए इंतहाई शानदार है। आज आपको बीजिंग की कामयाबी के राज से आगाह करते हैं। सबसे पहले अहम नुकात पर तवज्जो दें। गुज़श्ता 5 बरसों में बीजिंग की पेशरफ्त किसी एक शोबे तक महदूद नहीं रही बल्कि हिमाजहत रही। उसे एक कामयाबियों के तरहत के जरिए मुख्तसरन बयां किया जा सकता है। मईशत को देखें,
5 बरसों में 2 ट्रिलियन yuan का संगमेर अबूर किया गया, जो हर साल एक दरमियाने दर्जे के शहर के GDP में इजाफे के मुसाफी है और फिक्स GDP कौमी सतह पर सरे फहरिस्त है। टेक्नोलॉजी और सकाफत का दोहरा इम्तिजाज। तहकीकी और तरक्की पर सरमायाकारी की शिद्दत 6% है, यानी हर 100 yuan आमदन से 6 yuan जिधर पर खर्च होते हैं। आलमी सतह पर इंतहाई हवाले देने वाले साइंसदानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक तरफ सरमाई ओलंपिक में कामयाबियाँ और दूसरी जानिब वस्ती महवर का आलमी सकाफती विरसा में शामिल होना आलमी सकाफती विरसे की मजमूई तादाद में भी सरे फहरिस्त मकाम। ये हकीकी मानों में हिमाजहत कुव्वत की मिसाल है। माहौलियाती बेहतरी सबसे खुश आइंद है। नीला आसमान मामूल बन चुका है। 5 बड़ी नदी का मुकम्मल इंसार बुहार हुआ और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मुसलसल 10 बरसों से बुलंद हो रही है। अवामी फलाह बहबूद की झलक छोटी छोटी बातों में नुमायां है। रिहायशी आमदन 72,000 yuan से बढ़कर 85,000 yuan हो गई है। कम अज कम अजरात 2,540 yuan तक पहुंची। शहरियों देही आमदनी का फर्क मुसलसल 7 बरस से कम हो रहा है। पेंशन और दिबी बीमा में शमूलियत नुमायां तौर पर बढ़ी, गोया हर शहरी के लिए तहफूज की एक जगह फराहम कर दी गई हो। कहा जा सकता है कि अगर 14वां बांदसारा मनसूबा बुनियाद मजबूत करने का मरहल था तो 15वां बांदसारा मनसूबा चौथी की जानिब पेशकदमी है। तवज्जो के 3 मरकजी निकात हैं। दारुल हुकूमती अफवार की बेहतरी, नए मयार की पैदावारी कुव्वतें और अवामी फलाह व बहबूद में इजाफा। दारुल हुकूमती अफाल को वाहिद मरकज से हल्का जाती कुव्वत में बदलना मकसद है ताकि बेजिंग, तियानजिन, हेबei मुशतरका तौर पर तरक्की करे, बिल्कुल ऐसे जैसे मरकजी चाय की दुकान आला मयार की हो और ज़ेरी शाहीन सहूलत फराहम करे, यूं पूरा खिता मुस्तफीद हो। नए मयार की पैदावारी कुव्वतें करीबी हैसियत लगती है। मकसद सिर्फ फर्जी बातें नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को हकीकी मेशत कदर में ढालना है। मसनूई जहानत, चिप्स और बायो टेक्नोलॉजी की सनतकारी जैसे चाय की दुकान ज़हीन ऑर्डर मुतरादिफ करवा रही है, जिससे कारकर्दगी और तजर्बे में इजाफा होता है। अवामी फलाह व बहबूद का मज़ीद महसूस होना और काबिल रसाई होना हदफ है। बुजुर्गों और बच्चों की खिदमत में बेहतरी, मेट्रो नेटवर्क की तौसीह और स्मार्ट सिटी इक़दाम ताकि उम्र की अंजामदही आसान हो जाए। आज बीजिंग में ज़िंदगी में पैसे कमाने तक महदूद नहीं बल्कि खुश महसूस करने में भी है। यकीनन कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। शहरियों, देही आदम तवाज़ुन और बड़े शहर के नज़्म-ओ-नस्क का दबाव, ताहम बीजिंग का मसला हल करने का तरीका बिल्कुल वाज़ेह है। कमज़ोर बहरूम को बेहतर बनाना, मजबूत बहरूम को मज़ीद तक़वियत देना, जैसे चाय की दुकान अपनी तरबियत को मुसलसल बेहतर बनाती है और दिन ब दिन मज़ीद ज़ायक़ादार होती जाती है। 14वां बांदसारा मनसूबा अपने हदफ से बढ़कर कामयाब रहा, जबकि 15वां बांदसारा मनसूबा सोशलिस्ट जदीदियत की जानिब पेशकदमी का मरहल है। तो आप 15वें बांदसारा मनसूबे में किस पहलू के सबसे ज़्यादा मंतज़र हैं? साइंसी टेक्नोलॉजी पेशरफ्त या अवामी फलाह व बहबूद के इक़दाम? वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। शिंगान से गंदारा तक ज़बान अलग, लिबास अलग, खाने अलग। हम एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, लेकिन इतने पक्के दोस्त कैसे बन गए? आपके ख्याल में पाक चीन दोस्ती कब शुरू हुई, जो कि हज़ारों साल पुरानी है, जब ना वीज़ा था और ना ही इंटरनेट, सिर्फ ऊंट और तहजीबों का इश्क था? कैसे? देखते हैं चाइना ट्रैवल की इस रिपोर्ट में। 你好 ज़बान अलग, खाने अलग, लिबास भी बिल्कुल जुदा। हम एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, लेकिन इतने बड़े दोस्त कैसे बन गए? अरे दोस्तों,
آپ کے خیال میں چین با دوستی کب شروع ہوئی؟ اگر آپ کا جواب ہے سال سن 1951 سے تو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا جواب 100% درست نہیں، کیونکہ یہ دوستی 2000 سال پرانی ہے، جب نہ ویزا تھا نہ انٹرنیٹ، صرف اونٹ، غافلے اور تہذیبوں کا عشق تھا. تقریباً 2100 سال پہلے چین سے ایک نہایت بہادر سفیر روانہ ہوئے تھے جن کا نام تھا چانگ چھین. انہوں نے سفر میں اتنی سختیاں اٹھائیں کہ کئی مرتبہ موت کے منہ سے بار بار بچے. آخرکار ایک راستہ ملا اور یہی وہ راستہ ہے جسے ہم آج شاہراہ رشید کہتے ہیں. یہی وہ تاریخی راہ ہے جس نے پاکستان اور چین کو بحری مرتبہ جوڑا. لیکن جناب، یہ کوئی عام تجارتی راستہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا تہذیبوں کا ایکسپریس ہائی وے جس پر سفر کرتے ہوئے چینی ایجاد کاغذ سازی کی تکنیک بھی آج کے پاکستان تک پہنچی. یہ ہے چین کے صوبہ شانسی میں واقع یون کانگ گراٹ ہاؤس، جو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے. اب ذرا اس مجسمے کو دیکھیں، کچھ جانا بہجانا لگ رہے نا. اگر اس کو لائے جائیں پاکستان کے تکثیرات، ارے جناب یہ تو کاپی پیسٹ لگ رہا ہے. یہ اسٹائل چین کا نہیں بلکہ اصل میں پاکستان سے آیا ہے. جی ہاں، یہ گندھارا آرٹ کا آغاز ہے جو پاکستان کی مٹی سے اٹھا اور چین کی مجسمہ سازی کے آرٹ میں جان ڈالی. یہ تہذیبی لگتے وہ بیچ تھے جنہوں نے ہمیں دوستی کے تناور درخت تک پہنچایا، اور وہ بھی ایسا درخت ہے جو 2000 سال سے ہرا بھرا ہے. جب قدیم شاہراہ رشید پر لوگ دوستی کے قافلے لے کر چلیں تو چین کے بہادر سفیر چانگ چھین کی طرح پاکستانیوں اور چینیوں نے بھی دوستی کی ایک نئی راہ تعمیر کی. وہ ہے قراقرم ہیوی. آج سیپیک نے دونوں ممالک کو مزید قریب لایا ہے. زبان الگ، ذائقے الگ اور لباس بھی الگ، لیکن دل ایک. ہم ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عزت کرتے ہیں. ہمیشہ کے یہ دوست بھی ہیں. چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ GNNHD.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے.